So if I touch the kettle, it is too hot. है ना, अभी ये गर्म हो रही है, but it is hot. I am feeling it hot, right? So let's see what happens. अभी can you see? Can you see some steam coming out? अभी थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी और बन जाती है, तो steam is coming out of it. Let's see. Let's see it. When I touch it, can you see it? When I touch it, it is, you know, it is very hot. If I touch the water, it is very hot. I am, I don't have any courage to touch the water because it is very hot. ये मैंने टच किया तो ये भी hot है, ठीक है? ये टच करने से मुझे गर्म लग रहा है. And you can see that. Can you see that steam is coming out? यादव जी जरा लाइट बंद कर लो, करके देखें जरा. Can you see how many of you can see steam is coming out? Very good, very good. चला चला. Steam is coming out and वो ऊपर की तरफ जा रही है, right? So it is going above, है ना? Steam ऊपर की तरफ जा रही है अगर आपको दिख रही है. और अगर मैं साइड में भी थोड़ा सा करूंगी तो ये भी हमें गर्म लगेगा. Yes, Archimedes, here, जल्दी से. ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, अगर आपको दिख रही है, यू कैन सी बॉइलिंग वाटर, lot of steam is coming out, lot of steam is coming out. So let's discuss why, what happens if I touch this vessel, it is very hot, why the steam is going above. So let's discuss. Yeah, जी ये लीजिए. So how the water becomes hot, why it is hot when I touch it. So let's discuss this. So this child, right? I have named it Sukhman. So Sukhman has touched the hot water, right? And his expression, he is feeling very hot, right? And right. So what makes the question is why Sukhman feels hot when he touched boiled water. हाँ जी बेटा, फॉर्मेट इज देयर. फॉर्मेट में कमलप्रीत, कमलप्रीत इज देयर. फॉर्मेट, आ जाओ बेटा, आ जाओ, माइक ऑन करो. Yes. Then Sukhman feels hot when he touched boiled water. Because the water is even hot and the bulb is high. Water से, is there any heat transfer? Yes. हीट ट्रांसफर हुई है, इसकी हीट ट्रांसफर हुई है, कहाँ को हुई है?
रेड शर्ट, यू कम, जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, आओ जल्दी से आओ। हीट ट्रांसफर कहाँ से हुई है? दो बॉडी को टच करने के conduction from hot body to cold body transfer when it is contact with each other. When we touch it, विदाउट टचिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। When he touched water, the heat moves from, इधर देखिए ब्रह्मगुप्त बॉयज, इधर the heat moves from hot water to Sukhman's hand. That is conduction. So Sukhman feels hot when he touched hot water due to conduction. Right? So let's see कि conduction क्या है। Now, conduction. So here, when we cook food, ये जो पैन है वो गर्म है, ठीक है? And suddenly one that touches this, ये जो कड़छी है, ये जो टेबल स्पून है, ये पैन में ही है। When he or she touched the ladle of the tablespoon, so he or she felt very hot. Why? Because the heat from the pan is conducted, क्योंकि ये स्पून पैन के टच में है, तो यहां से पैन से हीट इसके ऊपर कंडक्शन हुई, ट्रेवल हुई, राइट? मॉलिक्यूल्स, दोबारा से कंडक्शन में क्या चीज ट्रेवल हो रही है? हीट ट्रेवल हो रही है। एवरीबडी हियर, यू लर्न, बॉयज इधर, तो हीट ट्रेवल हो रही है। आर्यभट्ट, गर्ल्स पीछे विंडो की तरफ से इधर देखो, सीधा बैठो। सो हियर ये सब मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो ये स्टील के मॉलिक्यूल्स है, ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे, कुछ नहीं हिल रहे, ये नहीं कहीं जा रहे हैं। तो क्या चीज हो रही है? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने, यू कैन सी हियर दैट दिस इज हीट। इसने क्या किया है? इसको हीट किया है। इट गेन्स एनर्जी एंड देन passes energy to the next molecule, then this passes energy to the next molecule. इस तरह से heat travel हो रही है from one molecule to another molecule. लिखो जरा, in conduction, write down everybody. In conduction, the molecules do not move. The molecules of a substance, particles, molecules नहीं पता चल रहा, particles of a substance. Write down, in conduction, particles of a substance do not move. 7 EC, second bench, boys लिख लो, boys and girls. The particles of a substance do not move, but heat moves from hot particle to the colder particle. Hot particle to the colder particle. For example, format, बेटा पीछे क्या करने गए हो? बैठो अपनी सीट पे, come back. What happens here? You can see that here the boys have fixed place, but is transferred. One boy has ball, he transfers ball to the next, this one then transferred ball to the next, then next, then next. इस तरह से ball transfer हो रही है, boy नहीं भाग रहा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर heat transfer हो रही है from one particle to another particle, right? So this is conduction. When we touch hot water, our hand, we feels hot due to conduction. जो पानी से हीट है कहाँ पर आ गई? हमारे हाथ पर आ गई। मॉलिक्यूल्स ने ट्रांसफर की हीट हमारे हाथ, राइट? Then next is, एक हम और बात करते हैं। Then he further sees that water starts boiling. He see bubbles on the upper side.
First you see bubbles on the upper side, then on the lower side, steam is coming out after this. So Sukhman sees this. How the water boils. Next question आ जाता है बेटा. Which process of heat transfer occurs during boiling of water? Boiling or heating of water? Water or any fluid? Yes, अब मेरे पास आ जाइए यूलर प्रभजोत. यूलर में प्रभजोत. प्रभजोत, वेयर इज प्रभजोत? आजा बेटे जल्दी से आ. वर्कशीट नहीं चाहिए हमें, मैंने तो क्वेश्चन यही लिखा है. चल माइक ऑन कर, माइक ऑन कर. Yes, tell me which process of heat transfer occurs during boiling or heating of water? हमने ये ऑन किया, एकदम ने बॉयल करना शुरू किया थी, पहले हीट हुआ फिर बॉयल होना शुरू हुआ. Tell me which process? पहले तो दो, पहले पहले मुझे tell me the three phenomena of heat transfer. कोई और तो फिर मुझे इसकी आवाज नहीं सुनाई देगी. लेट हिम टेल. वन इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन, थर्ड मोड क्या है? रेडिएशन. देर आर थ्री मोड्स. ठीक है. वाटर की बॉइलिंग या हीटिंग किस मोड से हो रही है? कंडक्शन, कन्वेक्शन की रेडिएशन? इस कन्वेक्शन क्या चीज होती है? कैन यू टेल मी व्हाट इज कन्वेक्शन? वेरी गुड. चलिए, सेवंथ EC में देयर इज ए गर्ल इन ब्लू शर्ट हु हैज रेज्ड हैंड, मिडिल रो. कम ऑन, कम नियर माइक. बाकी सब एकदम चुप करके बैठेंगे. यस, टेल मी व्हाट इज कन्वेक्शन? It is the process of heat transfer in a fluid like air and water. कैसे कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, मैंने क्या बताया था कंडक्शन में? डू द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? कंडक्शन में हमने जो बात की है, ये जो हमने कंडक्शन में बात की है, क्या मॉलिक्यूल्स हीट लेके इधर उधर भागते हैं कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर रहते हैं बेटा? दे आर इन मोशन और दे डोंट मूव? दे डोंट मूव, दे ओनली ट्रांसफर एनर्जी. जैसे ये बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं कंडक्शन में, जबकि कन्वेक्शन में आपने क्या बताया कि कन्वेक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स. एवरीबॉडी लिसन, क्या फर्क है दोनों तीनों में? कन्वेक्शन में ये मॉलिक्यूल भाग रहा है, राइट? सो व्हाट हैपेंस कि इफ दिस गेट्स हीटेड, हम हीट को रेड कर लेंगे. ये हीट हो गया, अब बैठो. ये मॉलिक्यूल हीट हो गया और ये ऊपर जो है ये अभी कोल्ड है. जब हीट हो जाता है, ब्रह्मगुप्त स्टूडेंट्स सी हियर, so when the molecule get heated, can you tell me it becomes light in weight or it becomes heavy? Who will tell me? Raise your hands. Brahmgupta, when the molecule get heated, will it get lighter or will it get heavier? Brahmgupta, yes, boy in red shirt, come forward.
It will get lighter. लाइटर, तो लाइटर चीजें हैं वो ऊपर आ जाती है कि नीचे बैठ जाती है? ऑन करो, हु विल टेल मी कि लाइटर थिंग्स फ्लोट और दे सिंक? लाइटर थिंग्स फ्लोट करती है कि सिंक करती है? Float. दे फ्लोट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो दिस बिकम्स, ये हीट कर दिया तो दिस कम्स हियर, जो हीट है वो लाइट हो गया तो ये इधर आ गया, जबकि जो कोल्डर था वो नीचे चला गया, ठीक है। देन इट गेट्स, जो कोल्डर वन था इट गेट्स हीटेड अप एंड देन इट कम्स अबव, अगेन एक कोल्डर मॉलिक्यूल नीचे चला जाता है। दिस इज कन्वेक्शन। लिखो इन कन्वेक्शन, राइट डाउन एवरीबडी, इन कन्वेक्शन the the hot molecules, the hot particles. Write down everybody, 7EC, girls, middle row, अपना काम। In convection, the hotter particles become lighter. Write down, the hotter particles become light in weight. They rise above. They rise above and replace colder particles. And replace colder particles. ब्रह्मगुप्त अपनी जगह पर बैठो बॉयज। Right? So you can see here what happens when you start heating from bottom, the molecules near the bottom gets hotter and they rise above. ऊपर स्पेस तो उतनी है और कुछ जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है, कोल्डर मॉलिक्यूल्स, वो नीचे आ जाते हैं, वो हीट हुए फिर ऊपर गए। धीरे धीरे जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स नीचे आते जा रहे हैं, हीट होके ऊपर जाते रहते हैं, and all of the water gets heated. So in convection, the hot molecules become lighter and rise above, replace colder molecules. Colder molecules replace होके कहाँ गए? वो नीचे आ गए, वो भी हीट हुए फिर ऊपर गए, कुछ और molecules नीचे आ गए, right? This is convection. And then who is she? She is, let's name her Anupama, right? Anupama, she was walking in a garden in the early morning, right? At about 5:30 or 6. Then, after brisk walking, she got tired. Idhar dekho, everybody here. She got tired and she sat on the bench, right? And after some time, आजकल गर्मियां हैं, सूरज बहुत जल्दी निकल आता है। At 6 o'clock, lot of sun, sunlight fell on her, right? And she started sweating. Name the process of the heat transfer from sun to Anupama on earth. Yes. कौन बता रहा है? गॉस में कौन बता रहा है? गॉस? यस, गॉस में मैं आई। गॉस पे मेरे पास नाम नहीं है, बट गॉस में यस, मिडल रो में बेटे लास्ट बेंच पे जो बॉय आया है रेड शर्ट में, वो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। बाय विच प्रोसेस द हीट फ्रॉम सन रीचेस टू अनुपमा? माइक ऑन करो और फिर बताओ। क्वेश्चन इज, राइट डाउन क्वेश्चन, हाउ द हीट from sun reaches अनुपमा। ये देखो, ये अर्थ है, ये सन है,
और ये सारी जो है एवरीथिंग, ये सारी जो है ना ये स्पेस है जहां पे वैक्यूम है, नो एनवायरमेंट, नो एयर। यस बॉस, हाउ द हीट रीचेस अर्थ। जरा से हेलो, देखिए आपकी आवाज आ रही है बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, चलिए आप मुझे ये बताइए, पीछे होके टेल मी, कंडक्शन कन्वेक्शन की रेडिएशन, थोड़ा सा पीछे हो और ऊपर करके बताओ, कंडक्शन कन्वेक्शन की रेडिएशन। इट इज थर्ड, बिल्कुल ठीक है, रेडिएशन, बिल्कुल ठीक, बैठो, वेरी गुड। सो रेडिएशन, बिकॉज conduction require molecules, convection require molecules, radiation does not require any medium to transfer. Write down, radiation is the mode of heat transfer. Write down everybody, radiation is the mode of, Archimedes girls, radiation is the mode of heat transfer in which नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर नहीं है, हो तब भी हो सकता है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई यू लर्न बॉयज, सीधे, दैट इज वाई, दैट इज वाई द हीट फ्रॉम सन, द हीट फ्रॉम सन travels through space, travels through space and reaches earth, and reaches earth. So Anupma is feeling hot due to radiation. चलिए कोई बात नहीं, थकी हुई थी, उसको थोड़ी सी गर्मी भी लगी, नो प्रॉब्लम। बट देन when she touched her hand with the iron bench, this is iron bench, when she touched hand she felt very hot, ठीक है, और उसने एकदम अपना हाथ हटा लिया, बिकॉज शी फेल्ट वेरी हॉट, बिकॉज heat from the wooden bench is transferred to hand of Anupama by, कौन बता रहा है किस प्रोसेस से? somebody from Aryabhat, सीरत, सीरत from Aryabhat, सीरत, जल्दी से आओ, जल्दी से, हमारे पास टाइम की कमी होती है। हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस आयरन बेंच टू हैंड ऑफ अनुपमा। माइक ऑन करो बेटा। जी हेलो, देखिए आवाज आ रही है? अच्छा पीछे हो, बोलो, कंडक्शन कन्वेक्शन की रेडिएशन, पीछे को हो जाओ थोड़े से। conduction इट इज, हाँ जोर से बोलो, आपकी आवाज आ रही है मुझे, हाँ। by conduction बाय कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन ही बोला है आपने। yes ma'am Yes, by conduction, because here the hand is in contact with the iron bench. ठीक है, right? It's okay. Next हम आ जाते हैं then, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी अनुपमा को, she came to a nearby room where there was AC and the room was very cool. How? Now my question is, why? Yeah, how AC caused room cooling? हाउ एसी कॉजेस कूलिंग या रूम कूलिंग कैसे होती है? विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन कन्वेक्शन की रेडिएशन? यस, कौन बता रहा है बेटा मुझे? आर्यभट्ट, एनी स्टूडेंट फ्रॉम आर्यभट्ट? कि कोई आर्किमिडीज में से बताएगा? आर्किमिडीज में द गर्ल,
हाँ जी, जो खड़ी हुई है वही आ जाओ, आ जाओ, माइक ऑन करो। बाय विच प्रोसेस द एसी कॉजेस कूलिंग ऑफ रूम? यस, बाय, Radiation. नहीं बेटा, इट्स नॉट रेडिएशन, इट इज कन्वेक्शन। कैसे? ऊपर, या हमने जहां पर भी लेटर से यहाँ पे फिट किया है कूल एयर, नीचे क्या है? नीचे क्या है? यहाँ पे वार्म एयर है। सो व्हाट हैपेंस, दिस वार्म एयर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा, पहले तो सब जगह एक ही थी, जब एसी चलाया तो ऊपर कूल होगी। सो दिस वार्म एयर इट गोज above and cool air moves down. Warm air goes above, gets cooled and comes down. This is convection, right? So write down, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में सब्जेक्टिवली. So AC causes room cooling by convection currents. Write down. AC causes room cooling by convection currents. Cool air, write down second point. Cool air being heavy, cool air being heavy moves down and warm air moves up and gets cooled. This is how, by convection currents. ठीक है, उसको ओपन में गर्मी किस कारण लग रही थी? बाय रेडिएशन। लोहे पे उसने हाथ रखा, शी फेल्ट हॉट बाय कंडक्शन। Then she came into AC room, felt comfortable due to convection. Okay? चलिए, अब आपके पास वर्कशीट है बेटा, स्टार्ट डूइंग दैट वर्कशीट। करो जरा, हम 5 मिनट पे इस पे आएंगे। चलिए, yes. So you can see question number 1, a metal spoon is placed. A metal spoon is placed in a hot bowl of soup. Metallic spoon, and it becomes hot. ये मेटल बाउल के कांटेक्ट में है, इसलिए ये स्पून हॉट हो गया ड्यू टू कंडक्शन. द स्टीम राइजेस अबव ड्यू टू कन्वेक्शन. और हमने इसको आग पे रखा हुआ है, फ्लेम पे रखा हुआ है, इससे जो हीट जा रही है दैट इज बाय रेडिएशन. बना लो ये, दैट इज बाय रेडिएशन. सो हीटिंग ऑफ बाउल, या तो आंसर इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. द फ्लेम से जो हीट जा रही है बाय रेडिएशन. स्पून जो गर्म हो रहा है दैट इज बाय कंडक्शन, और जो स्टीम जा रही है दैट इज बाय कन्वेक्शन. सो आंसर सी. ब्रह्मगो बेटा, बॉयज सेकंड बेंच सीधे होके बैठो, अपनी वर्कशीट पे काम करो. एवरीबडी वर्क ऑन द, यस बॉस, गर्ल्स सीधे होके बैठो. पीछे इतनी बातें क्या है, मुझे समझ में नहीं आती. क्लास में ही बातें करनी है,
And why are you moving here and there? Go to your seat, sit down for 5 minutes. Question number 2. अगेन द सेम क्वेश्चन जो हमने अनुपमा पे किया था, ये आज रिया पे है कि उसका फेस गर्म क्यों हो रहा है, ड्यू टू रेडिएशन। बेंच से उसको हीट आ रही है, दैट इज बाय कंडक्शन। एंड सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, ऑप्शन ए। सबसे पहले रेडिएशन के थ्रू पॉट गर्म हो रहा है, फिर स्पून गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, दैट इज कन्वेक्शन। सो आंसर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 7 EC में, 7 EC में से somebody will tell assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है? यस, 7 EC। बेटा विंडो की तरफ पे वो जो लास्ट में बॉय है रेड शर्ट में, वो आ जाए बेटा। 7 EC आ जाइए, आ जाइए। अपनी वर्कशीट लेकर आओ, माइक ऑन करो, जल्दी से हम करें ताकि हम विद इन 5 मिनट्स वी शुड कंप्लीट। यू लर्न बॉयज, इधर ध्यान दो। हाँ जी बेटा, 7 EC बोलिए बेटा। In a room heated by a heater, the air near the heater rises and circulates. True or false? बेटा रूम हीटर के पास वो कहता जो एयर है, ये हीटर है, जो इसके पास एयर है वो वार्म हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू। हल्की हो गई वो, लाइट इन वेट, इट गोज अबव। गॉस बैठ जाओ बच्चे। Heat travels through air mainly by conduction. ये बेटा एयर, मुझे ये बताइए कि is the air moving by conduction की convection? It is by convection. So ये गलत हो गया। So assertion false। बैठो बेटा, very good। assertion true, reason false। ऑप्शन इसका सी आ जाता है, तो लिख लो assertion true, reason false। जो ऑप्शन 4 होती है उसमें ऑप्शन सी आ जाता है। देन फॉर्मेट, इन फॉर्मेट मंदिर, मंदिर इज सम फॉर्मेट में, मंदिर इज देयर। आजा बेटा, ले आ बेटा, वर्कशीट ले आ। वी फील वार्म स्टैंडिंग नियर द बोनफायर इवन विदाउट टचिंग इट। ये आपकी बोनफायर हो रही है ना, और यहाँ पे हम अपने हाथ सेक रहे हैं, टच तो नहीं हम कर रहे। इज इट ट्रू कि फॉल्स? दिस इज ट्रू। रेडिएशन ट्रांसफर्स हीट थ्रू एयर वाया पार्टिकल्स। ये जो वो कहता है कि ये हमारे हाथ जो गर्म हो रहे हैं ये रेडिएशन से हो रहे हैं, और रेडिएशन एयर के थ्रू पास हो रही। इज इट ट्रू कि फॉल्स? False. दिस इज फॉल्स। व्हाई? वेरी गुड। Ma'am, because radiation does not require an medium. Very good, very good. Absolutely correct. Because this is right that hands get warm due to radiation, but it does not require any medium. That is why it is false. यहाँ पे लिखा है एयर पार्टिकल्स के थ्रू, तो ये गलत है। ब्रह्मगुप्त बॉयज इधर ध्यान दो। सो ये गलत है। सो आंसर असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, अगेन ऑप्शन सी। अब चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे ये पानी है, हमने इसको यहाँ पे एक आइस क्यूब लिया और उसको हमने एक वायर गॉज से जो है उसको हमने लपेट दिया ताकि वो why it is wrapped by a wire gauze, ताकि it does not float, it remains same, and we heat it from here. Can the ice cube melt? Will the ice cube melt? Who will say it melt? Yes. बेटा यहाँ पे देख, सी हियर, कि यहाँ पे ऊपर पानी बॉयल करेगा, बट वाटर मॉलिक्यूल्स जो हीट है वो लाइटर है,
वो नीचे नहीं जाएंगे, इसलिए द आइस विल नॉट मेल्ट बिकॉज हीट विल नॉट ट्रेवल डाउन। हीट तो ऊपर की तरफ जाती है, सो water will not melt. लिखो, water at the top starts boiling. That is right. But is the ice melting? No, ice will not melt. ठीक है, because water is a poor conductor of heat. Everybody here, सब इधर देखो, फटाफट से हम खत्म करेंगे। बट अगर हम, what will happen if ice floats? अगर आइस इधर फ्लोट कर रही होती और हम इधर से हीट करते, उल्टा कर दिया हमने, then heat will travel here, hot water goes here, the ice will melt। ठीक है, तो थर्ड में लिख लीजिए ice will melt, क्योंकि हॉटर वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सेवंथ का मुझे कौन बताएगा? लास्ट हम करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु विल टेल मी? जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम छोड़ेंगे, आपका टाइम भी हो रहा है। यूलर में अगर फर्स्ट बेंच से बॉयज बता रहे हैं ना मुझे, वो आ जाओ। यूलर में फर्स्ट बेंच पे येलो शर्ट में जो लड़का है वो आ जाए। आ जा बेटा। मैम, हाँ जी बेटा। मैम जो यहाँ पे आपने समझाया है मैम, हम्म। उसमें तो मैम जब हीट होगा वाटर तो मैम गर्म पानी में आइस में आइस भी तो मेल्ट होगी। क्या? यहाँ पे देखो, गर्म पानी हीट हम यहाँ कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे। जो हीट वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो स्टीम बन के ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले वाटर ठंडा का ठंडा ही रहेगा। इस हीट के कारण मेल्ट नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर के कारण मेल्ट कर सकता है, दैट इज ए सेपरेट इशू। बट इस हीट के कारण नहीं, बिकॉज वाटर ऊपर ही जाएगा, हॉट वाटर नीचे नहीं आएगा, सिंक थोड़ी करेगा हॉट वाटर। यस और नो? यस मैम। यहाँ पे बर्फ ऊपर चलेगी, हीट नीचे है, बट हॉट वाटर मूव्स above, therefore it gives heat to the ice and ice will melt। ठीक है, समझ में आई बेटा ये चीज? यस, यूलर में। हाँ जी, फर्स्ट बॉय को मैंने बुलाया था। आजा, क्वेश्चन नंबर 7, फिर हम छोड़ते हैं। यूलर, नो टॉक, नो टॉकिंग बेटा। एक ये हीट है, इसी के एक यहाँ पे वैक्स है, और हमने हीट जो है यहां से करना शुरू किया, ये आयरन रॉड है। तो अब मुझे बताइए, ये ए एंड बी दोनों वैक्स के बॉक्सेस है या क्यूब्स है, क्या दोनों मेल्ट करेंगे कि एक मेल्ट करेगा? क्या होगा? दोनों एक ही लेवल पे है। थोड़ा सा मैं इसको इस लेवल पे कर दूं, बोलो बेटा। टेल मी। यस यूलर, कहाँ चला गया पहला लड़का? बैठ गया अपनी सीट पे, आता नहीं? आजा, बता, आजा फटाफट से आ। हाँ जी, कौन सा मेल्ट करेगा, बोथ ए एंड बी कि एक ही बी? हु विल टेल? बैठो बेटा, आप बैठो, आपको नहीं आता। टेल मी, हु विल टेल both A and B will melt? Raise your hands. Who will say this? Both A and B will melt. कोई नहीं कह रहा? अच्छा, only B will melt. Who will say only B will melt? Okay, who will say only A will melt? को नहीं पता। देखो, अब ध्यान से देख लो, लास्ट चीजें हैं, कुछ यूलर में हाथ खड़े हुए हैं। वेरी गुड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज हीटेड। ध्यान से इधर देखो, ध्यान से इधर देख लो।
द हीट इज कंडक्टेड, क्योंकि आयरन रॉड है, हीट इज कंडक्टेड टू द ए, नॉट दिस वन बट क्या देखो, टूवर्ड्स द ए। आयरन रॉड में हीट की कंडक्शन हो रही है, सो दिस ए विल मेल्ट। देन द हीट here air gets heated up, but it will move above, not here. The hot air moves above, इसके पास नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद मेल्ट करेगा, that is a separate issue, but the hot air does not move horizontally, it moves vertically upwards, therefore B will not melt, right? So answer is wax on the metal rod, it will melt. दूसरा है wax suspended on the stand, will not melt, because आप लिख सकते हो because hot air moves Second and third. vertically, second वाला है will not melt, because क्यों नहीं melt करेगा, because hot air moves vertically upwards. Question. कौन सा बचा? Second and third question. सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी एंड ए है, आप बताइए कौन सा गड़बड़ है? इनका एक बार मतलब भी बता दो कैसे है। ऑन ए सनी विंटर मॉर्निंग, जो मैंने पहले स्टोरी बताई थी, रिया इज सिटिंग ऑन ए वुडन बेंच, एक मिनट, शी फील्स वार्मथ ऑन फेस, शी फील्स वार्म, बेटा वुडन की जगह एक और लिख लो, नहीं यहाँ पे राइट डाउन, राइट डाउन, इसका डी ऑप्शन आएगी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी, डेल्टा, क्योंकि वुडन में बेंच तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, सिर्फ रेडिएशन से वार्मथ होगी, ओनली रेडिएशन, राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3, पॉट, फ्लेम से पॉट गर्म हो रहा है बाय रेडिएशन, पॉट से स्पून गर्म हो रहा है बाय कंडक्शन, ठीक है, और वहां से स्टीम उड़ रही है बाय कन्वेक्शन, ठीक है, सो आंसर इज ए, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है जी। तो ये आई थिंक सी ब्रीज लैंड ब्रीज आप कर लेंगे, नहीं तो हम अगली बार जो है ये समझ के आएंगे, बिकॉज सी ब्रीज लैंड ब्रीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो एवरी सेक्शन विल ब्रिंग वन क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम अबाउट हीट, ठीक है, ये लेकर आओगे आप? मैम हाँ जी तो सेकंड क्वेश्चन है उसको ना ये भी बता दो रेडिएशन कैसे, बेटा, रेडिएशन सन से आ रही है, सनी विंटर मॉर्निंग कैसे है। क्या बेटा क्या? मैम ये क्वेश्चन का मतलब बता दो कैसे होना On a sunny winter morning, Ria is sitting on a wooden bench in a park. She feels warmth on her face. Her back stays. पीछे से नहीं, उसकी जो है पीछे से ठंडी रही है, उसकी बैक ठंडी है, बट फेस पे उसको गर्मी लग रही है, ठीक है बेटा। अगली वाली लाइन काट दो, शी फील्स वार्मथ फ्रॉम द बॉटम, ये काट दीजिए, ये काट देना। तो विच प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर आर एट प्ले, उसके फेस को गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि सन से हीट आ रही है, ठीक है, और कैसे आ रही है, बाय रेडिएशन, इज इट ओके? पीछे उसकी बैक क्यों गर्म है, क्योंकि वो वुड के साथ है, एंड वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं ये समझना था कैसे रेडिएशन, पता चल गया अब आपको? इज इट राइट, समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए जी, दिस इज अबाउट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, अगली बार सी ब्रीज लैंड ब्रीज करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट अनदर थिंग, राइट? ओके, बाय बाय, थैंक यू।